एनडीटीवी नेटवर्क पर इस विशेष कवरेज को लेकर हम आपके पास एक बार फिर से हाजिर हैं। आज सुबह से ही आप हमारे साथ बने हुए हैं, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। फाइनल मैच खत्म हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व विजेता बन चुका है और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगियों के साथ हमारे साथ मेहमान भी हैं, रीका है, सुमित है, ओसामा है। इनफैक्ट 6 विकेट से भारत मैच हारा है। ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार वर्ल्ड कप जीता है, तो 6 का फिगर काफ़ी क्रूशल हो गया आज के दिन पे। हालांकि 19 नवंबर का दिन है आज, उसका 19 का कोई जोड़ 6 से मैं जोड़ नहीं पाया। मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं 6 के पहाड़े में 6 के टेबल में 19 आता है क्या, लेकिन वो हो नहीं पाया। ट्रॉफी अभी तक मिली नहीं है। मैच खत्म हुए करीब 45 मिनट हो चुके हैं। अभी वहाँ पर जैसा हमको बताया जा रहा है इस वक्त अब पोस्ट मैच सेलिब्रेशंस का टाइम आया है, लेकिन आगे क्या होगा उस पर बताते रहेंगे। रिका और उसामा हमारे साथ है। रिका। Well, it was all yellow at the Narendra Modi Stadium. Australia clinching the 6th World Cup title in a very, very convincing manner. They beat India by 6 wickets. It was a one-sided affair in the end, despite India's dominant show in the World Cup, having won 10 matches. But the 11th wasn't to be their day. On Sunday, it was Team Australia, Pat Cummins' team, clinching their 6th title, and well, it has come after some time, so Australians will cherish this. In the studio, we have former cricketers Sabah Karim, Vijay Dahiya, Gursharan Singh. We also have Mohammad Shami's coach, and we are going to talk to them about where India dropped the World Cup. Sabah, your first reaction? Yes, Osama, please go on. Okay, I also want to add that despite the fact that this is a heartbreak for all of us. It isn't really a heartbreak. Yeah, all of us fans, but yeah. at the same time, we should be really proud of India's entire campaign. And this is what I want to discuss with our experts here. India should take a lot of positives from ओसामा एक मिनट, campaign. बच्चे भी हैं हमारे साथ, इनको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं जी, जी। लास्ट टाइम में। तो सलाम बालक ट्रस्ट के बच्चे भी हमारे साथ सुबह से बने हुए, इधर भी हैं उधर भी हैं, और हमारे साथ वैशाली भी हैं, उनके साथ भी जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं। आप सबको का शुक्रिया है कि आप सुबह से बैठे हैं। और सलाम बालक ट्रस्ट की मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके साथ, अभी टी शर्ट का रंग नीला कर दीजिए। ये येलो रंग है ना, आप लोग पहन के आओ, येलो टी शर्ट के लोग जीत गए। एक्चुअली अगर ये लोग बैग दिखाएंगे, जरा बैग खड़े हो जाओ, जरा बैग दिखाओ सारे। ये इंडिया लॉयंस टीम है जो कि स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे चेन्नई। तो ये हमारा इंडिया का एक्चुअल ड्रेस था। हाँ, चेन्नई कनेक्शन है, सीएसके। जी ओसामा, कैरी ऑन। Yes, Sabah bhai, your reactions on this match, plus the fact that, like I said, India should take a lot of heart from this entire campaign. That's correct, Osama. I think this team should be extremely proud of the way they have performed. They have raised the expectations of all the cricket fans, and that is why one expected them to win. And I also feel this was such a golden opportunity for India to come good in the finals, because the way I look at it, the way India has performed, it seemed to be the best possible 11 to win the World Cup for us after 12 years. Unfortunately for India, this is such a disappointing loss. Nothing felt right for India in the finals, although in the previous, all the 10 encounters, India were able to win all the big moments, all the critical moments. Unfortunately, India just faltered at the wrong time. But yes, I think I was looking for a World Cup win, not only because India deserved it, but I think this is the kind of domination I expect from the Indian side, not only in one-day cricket, but in all 3 formats, because India has got the right kind of players. We do have the acumen, we do have the perfect exposure, and our bench strength is so strong. So this was like an ideal time for India to win the one-day World Cup. दहिया साहब 10 मैच शानदार क्रिकेट खेलते हैं, एक मैच आज फाइनल हार गए। अभी भी इस टीम के साथ पॉजिटिव है, बने रहना चाहिए इंडियन फैंस को और इंडियंस को। जी बिल्कुल बने रहना चाहिए। दुख इस बात का है कि आप जिस मैच को हारे हैं उस मैच के ऊपर सब कुछ था, सब दाव पे उसी पे था। अगर आप जिस तरीके से हमने इस मैच के बारे में भी हेडलाइंस पढ़ी है ना, हम ये कह रहे हैं कि भारत 6 विकेटों से हारा। जब आप ये कहते हैं 6 विकेटों से हारा, तो सिर्फ आप ये कमी देखने लगते हैं कि भारत ने क्या किया। आप इसी चीज़ को बोलने लगेंगे कि ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया ने क्या अच्छा किया उसकी तरफ आपकी नज़र जाएगी, और जो जीता है उसकी तारीफ बनती है, क्योंकि आप इस खेल के बारे में, ये खेल सिखाता है आपको ये है कि ऑन अ गिवन डे जिसने जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ बनती है। और मुझे लगता है कि
हर डिपार्टमेंट में आउट क्लास किया है। कई बार हम ये भी कह देते हैं कि चलो सिर्फ एक टॉस ही जीते, उसके बिना कुछ नहीं जीते, आज तो वो भी नहीं हुआ। तो वो उस तरीके का दिन था और ऑस्ट्रेलिया ने हर चीज़ में, और क्या होता है कि जब इस तरीके का रिजल्ट आपको मिलता है ना, तो फिर आप सारी चीज़ें जोड़ देते हैं। आप प्लानिंग भी कहते हैं बहुत बढ़िया थी। अगर हम तैयारी के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपने पिछले 8 वनडे में से 5 हारा है। साउथ अफ्रीका के अंदर 5 मैच की सीरीज़ खेला था, जिसमें 2 पहले मैच जीता, उसके बाद लगातार 3 हारा। भारत में आया, वहाँ 3 में से लगातार 2 हारा। तो ये नहीं कह सकते कि आप उनकी तैयारी इस तरीके की थी कि ये आपको उससे अंदेशा हो रहा था कि ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाले। यहाँ पर भी वो जिस तरीके से खेले, लेकिन हर आदमी जो क्रिकेट की थोड़ी बहुत नब्ज़ रखता है वो ये कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसे जैसे धीरे पहुँचती जाएगी, जैसे जैसे नॉकआउट्स की तरफ पहुँचती जाएगी, उनकी दावेदारी उतनी ज़्यादा पुख्ता होती जाएगी। और वही उन्होंने किया और वही दिखाया है उन्होंने कि ये कि सिर्फ स्किल नहीं, आप मेंटली कितने मजबूत होते हैं। क्योंकि थोड़े समय के बाद इस खेल के अंदर वो ज़िद होनी चाहिए जो ट्रेविस हेड ने दिखाई है, या शुरू के 10 ओवरों में जहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि चीज़ें आपके हक में नहीं जा रही थी और आप एक आध गेंद को एज भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो लड़ते रहे, वहाँ पर रहे, और उनको ये पता था कि एक खिलाड़ी की कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है। और ट्रेविस हेड पहले कुछ मैचों में टीम के साथ थे नहीं, उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। जैसे ही वापस आए, उन्होंने वहीं से रन बनाने शुरू करे, और जो टर्न अराउंड अच्छी टीमों का होता है ना, वो होते हुए दिखा। हमें गेंदबाजी में शामी के साथ वो दिखा था, ऑस्ट्रेलिया के साथ बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड ने किया वो। Gursharan ji, I'll have to ask you about an evil phrase, and I call it evil because no one wants to hear it. Did law of average catch up with India? I think that happened today, the law of average. But I think we were just talking earlier also that India can only lose when they don't play to their potential. I think today in batting also, like batsmen getting set, and then like Rohit, Virat, KL Rahul, after being set, there was not any big inning like 100. If any one of them could have got 100, around 300, it could have been a good match. But after the event, you can say another 40 runs. But still, I think 241. It was a par score on this wicket. It was. And the fast bowlers, what they did, they still did a brilliant job. They got 3 wickets in the first 6-7 overs, and after that, I think the spinners today were a bit off color, and for that, I think main thing is Travis Head. He attacked the spinner right away. आपने बॉलर्स की बात की, मैं चाहूँगा बदरुद्दीन जी को माइक दिया जाए। अगर आज आप मैच के बीच में होते और शामी बॉलिंग कर रहा होता और आपको एक मौका मिलता कि शामी उसके कान में क्या फूंकते जाके ताकि वो आज बॉलिंग ठीक कर पाते, आज कोई भी बॉलर रंग में नहीं दिखाई दिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कोई भी, जैसे शुरू में विकेट मिले भी हमें, लेकिन उसके बाद सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो स्पिनर थे जिन्हें ज़्यादा अच्छा करना चाहिए था, उसके बाद उन्होंने अच्छा नहीं किया। जैसे विकेट हम देख रहे थे या ऑस्ट्रेलिया के बॉलर, उस पर अच्छा टर्न हो रहा था बॉल वहाँ उस टाइम पे, लेकिन जहाँ पे विकेट गिरने के बावजूद भी स्पिनर ने अच्छा नहीं किया। और जो हम पहले से कह ही रहे थे कि सिराज जो है, सिराज अच्छा करेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, सिराज ने भी अच्छा बॉल नहीं डाला। और सामी भी, जैसे आप कह रहे हैं, सामी भी आज जैसा उसका बॉल सीम गिर रहा था, वो लेग साइड पे ज़्यादा मूव हो रहा था, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया शमी पे हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सब, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज पहली बार है कि रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी से नई गेंद से गेंदबाजी कराई। मोहम्मद सिराज जनरली हमेशा वो ओपन कर रहे थे बुमराह के साथ, तो क्या उसका असर पड़ता है? जो आज जो कंट्रोल मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में इसके पहले वाले मैचेस में हमें नज़र आया है, वो इनिशियल ओवर्स में देखने को मिला नहीं। हालांकि उन्होंने विकेट लिया, पर वहाँ पर गलती डेविड वार्नर की थी, मोहम्मद शमी की कुछ उतनी अच्छी गेंद पड़ी नहीं आज जो नई गेंद से होनी चाहिए। मुझे लग रहा था क्या उसका असर पड़ता है? देखिए असर पड़ता ही है। जैसे कि देखिए आप पहले से तैयारी करते हैं कि मैं वन चेंज में बॉल डालने आ रहा हूँ लगातार, तो उसी के लिए तैयारी करें, लेकिन एकदम से आपको पता चले कि भाई आपको नया बॉल डालना है, तो हो सकता है वो इतनी तैयार नहीं होता आदमी उसके लिए। और जहाँ पे जब वो बॉल डालने आ रहा था, जब तक 2-3 ओवर वो पुराना बॉल थोड़ा सा हो जाता है, और आपको पता ही है कि उसका पुराना बॉल भी अच्छा चलता है। Also, I mean, just want to add to that. I mean, Vijay talked about Australia. I think in big matches, in such World Cup encounters or World Cup finals, it's equally important to have a flexible strategy. Now, look what Australia did when they were chasing. Initially, they were ultra aggressive. The moment they lost 3 wickets, they kind of shut down the shutters for some time because Manus Labuschagne came into bat. Even Travis Head had a very flexible strategy. Before that, he was trying to be ultra aggressive, play too many high risk shots. But the moment he realized that Australia
are 3 down for 40, it was more important for them to stitch a partnership. They played more sedate in a more sensible manner, But Sabah, and I think sorry, that is one of the मैं reason बीच में why intervene कर रहा हूँ. Australia has I'm done just well. Playing a devil's advocate, if you would have been a captain, आपके पास आज मौका होता, आपका एक बॉलर है जो पिछले मैच में 7 विकेट लेकर आया है, जो लगातार अच्छा खेल रहा है, और आपके पास 240 के टारगेट है, 400 रन नहीं है आज, तो आप उसको वेट कराते 9 ओवर तक, 10 ओवर तक, कि जब चेंज होगा तब मैं उसको बॉलिंग दूंगा शमी को, या फर्स्ट या सेकंड ओवर में कराते? नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ रोहित शर्मा की क्या स्ट्रैटेजी थी, पर मुझे अभी भी लगता है कि एक कारण से ही मोहम्मद शमी को हम लोगों ने फर्स्ट चेंज गेंदबाजी कराई. हो सकता है कि 6th ओवर में 7th ओवर में उन्होंने गेंदबाजी कराई है, और मोहम्मद सिराज आपके एक समय में सेकंड बॉलर हुआ करते हैं, अभी भी हैं. तो अगर वो बात थी, मैं बस यहाँ पर कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तब आप सोच सकते थे कि वहाँ पर, हाँ, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की यही सोच होगी कि 7 विकेट जो लेने वाला बॉलर है वो इस कंडीशन में उसको हम पहले लगा दें. हो सकता है कि इनिशियल ओवर्स में अगर वो हमें विकेट लेकर दे देता है तो उससे भारत को फ़ायदा मिलेगा. अनफॉर्चुनेटली आज वो जो स्ट्रैटेजी थी रोहित शर्मा की वो कामयाब साबित नहीं हुई. ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगले 24 घंटे इसी बात पे पूरे देश में चर्चा होनी है कि जब आप पूरे पैटर्न के साथ जा रहे थे तो आपने जो है सिराज को पहले बॉलिंग क्यों नहीं दी? आई थिंक वो अब क्या नहीं हुआ उसके बारे में बात होगी. आपके पास अगर टीम के अंदर एक ऐसा गेंदबाज है जिसने पिछले मैच में 7 विकेटें ली हैं, आपके पास बोर्ड में सिर्फ 240 रन लगे हैं, आपको ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया की ताकत ये है कि वो पहले 30 ओवर के बाद लेके आएंगे. अगर देखिए सोच ये थी कि किस तरीके से गेम में बने रह सकते हैं, और आप और मुझसे ज़्यादा बेहतर वो टीम मैनेजमेंट जानती है कि वो खिलाड़ी नेट में भी किस तरीके की बॉलिंग कर रहा है, मैच में भी किस तरीके का उसका प्रदर्शन चल रहा है. और 10 ओवर खत्म होने के बाद एक ही चांस था आपके पास कि आपके स्पिनर्स किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, और आप वो चांस बराबर लेते रहे. यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तारीफ ये करनी पड़ेगी, आप उतने ही बेहतर होते हैं जितनी आप अपनी पिछली गलती से सीखते हैं, और वो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो गलती की थी, 113 रनों पे ज़्यादा शॉटें खेलने की कोशिश करी थी, वो ज़्यादा बेहतर नज़र आई. ये सवाल उठेंगे बाबा, इसमें कोई दो राय नहीं है. मुझे लगता है कि 32 ओवर के बाद लाए हैं आप. जहाँ पर दिक्कत ये है ना कि सवालों से ऊपर उठना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि बेहतर क्रिकेट खोलते हुए नजर आए. तो feel that Australia anticipated a lot of things in this match, and especially when it came to their bowling, and Rohit Sharma might have missed that trick when it came to his idea of selecting who to bowl when. I think if you look at the situation, you make this in this game you make mistake because of the pressure, and this is what was happening. Indian team was looking desperate after just 240 on the board. The only option you have to get them all 10 wickets. तो इसका मतलब हो गया घुस पाजी कि आप बॉलर को ब्लेम क्यों कर रहे हैं, फिर तो आपने रन ही नहीं बनाए. सब वही कह रहे हैं, सब वही कह रहे हैं. बॉलर ना कि 30 ओवर के बाद क्यों लाए हो. और इसमें सिर्फ गलती बॉलर्स की नहीं है, इसमें बैटिंग में भी हमने कम रन बनाए, प्लस थोड़ा लैग भी हुआ. जैसे बात हो रही थी कि मुझे लगता है जो मोहम्मद शमी सेकंड ओवर डाले, पहले ओवर में बुमराह को आई थिंक 12 या 14 रन पड़ गए थे, 15 रन पड़ गए थे. तो इसलिए फिर रोहित को यही था कि हमारे फॉर्म में यही बॉलर शमी चल रहे हैं, तो उन्हीं को कराई उन्होंने. और उसके बाद मैंने एक और भी चीज़ देखी, स्पिनर्स के टाइम में जब स्पिनर्स बॉल डाल रहे थे 3 विकेट्स गिर चुके हैं, उसके बाद थोड़ा सा अटैकिंग फील्डिंग होनी चाहिए थी. स्लिप नहीं रखा आज, 2 कैचेस स्लिप में गए स्पिनर्स को, तो वहाँ पे भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा लैग हुआ. फील्डिंग की तो बात ही ना करें. जी These kids were sitting with us since morning. They have come from Salam Balak Trust. You were a part of the Street Children World Cup. Tell us, even though India lost today, the moments that stood out for you, the moments that you will remember forever, हमेशा याद रखने वाली वो जो सिर्फ इस मैच से हाँ पल रही आपके लिए, वो सबसे बड़ा पल जो आप पूरे इस वर्ल्ड कप को जिसके चलते आप याद करेंगे. जी शुरू हो जाइए. कप्तान है आप टीम की. हाँ तो आप बोलना बताइए. पड़ेगा. शमी की बॉलिंग, शमी की बॉलिंग में क्लू दे देता हूँ. विराट का 50 सेंचुरी, क्या याद रखेंगे इस वर्ल्ड कप से? सब कुछ ठीक है, मतलब मैं ये बोलूँगी, देखो हार जीत होती है, ठीक है, वो होनी थी जिसकी भी होनी थी. मतलब दोनों टीम ने बहुत अच्छा खेला, बट सबसे अच्छा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग थी बहुत ही टाइट थी. मतलब उन्होंने जो शुरू में किया था पावर प्ले जैसा भी था, उन्होंने रन बहुत कम दिए. और फिर जहाँ इंडिया की बात आई, मतलब उसमें देखा कि फील्डिंग थोड़ी ढीली हो गई थी, और बहुत ज़्यादा मतलब कैचेस वगैरह गए, कैचेस तो नहीं, मतलब जो स्पिन बॉल जो करवा रहे थे वो छूटे. और ठीक है, अभी जो टूर्नामेंट है अभी तक का, मतलब उसमें सारे मैचेस तो जीते ही है इंडिया ने. अब हार गई, ठीक है, मतलब जोश तो होगा अभी भी, बट अगर जीत जाती हूँ मेरे ख्याल से दुगना और फिर
लिमिट नहीं होती इसकी. I want to take that forward. She mentioned about the fielding. Do you feel, Sabha bhai, Vijay bhai, all of you, that Travis had the fielding of taking that catch of Rohit Sharma? What do you feel that was possibly the turning or possibly the turning point of the match? तो मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ सभा भाई, ट्रेविस हेड ने कैच ही नहीं पकड़ा, ट्रॉफी भी पकड़ ली. अरे क्या बाबा, तालियां हो जाए आपके लिए. वो मैच का डिफाइनिंग मोमेंट तो ज़रूर था, क्योंकि बहुत ही कठिन कैच था. पीछे भागकर कैच पकड़ना याद दिला रहा था मुझे कपिल देव के, जो उन्होंने विव रिचर्ड्स का कैच पकड़ा था. और ये जो इंपॉर्टेंट कैचेस होते हैं, अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर उससे अब हौसला कितना बढ़ गया रोहित शर्मा का विकेट गिरने के बाद. तब तक तो ऐसा लग रहा था कि भाई क्या होने वाला है, रोहित शर्मा क्या बैटिंग कर रहे हैं. हम लोग बैठ के हाँ, और 47 पर वो खेल रहे थे. मुझे लगा कि अब यही बात है ना कि अब रोहित शर्मा का अप्रोच वही है, पर उस ओवर में 10 रन उनके आ चुके थे. वहां पर अब हम लोग ये बात कर सकते हैं फिर से क्यों मारने गए, पर यही अप्रोच से सफलता मिली अभी तक भारत को. चलिए, किंतु परंतु तो लगा ही रहता है क्रिकेट में. एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. कहीं जाइएगा नहीं, चंद पलों में वापस लौटते हैं. Welcome back. After a stellar campaign for India, winning 10 out of 10, India faltered at the last hurdle, and that is going to be hurting a lot of Indian fans. But the Indian fans can take a lot from this campaign. There was Virat Kohli's 50th ODI century, Shami getting wickets after wickets, fifers after fifers in this tournament. A brilliant campaign collectively for India, only for this particular match. निश्चित रूप से हाँ, निश्चित रूप से भले ही भारत हार गया हो, लेकिन ढेर सारे जो है सकारात्मक चीज़ें हुई हैं. टीम बनी है, जो टीम ने पिछले 1-1.5 महीने से इतनी खुशी दी. हर जीत के बाद हम सब खुश होते थे, भले ही एक हार मिली है, लेकिन वो हार थोड़ी चुभ रही होगी भारतवासियों को. Vijay, I'll have to come to you and really ask you about this World Cup probably being defining moment for few careers, or perhaps the last World Cup for a golden generation of Indian players and also for Australian players who will probably not in 4 years' time be playing World Cup. But the sentiments will completely different as far as that generation you're talking about, that's those players you're talking about. And you know, there's some of the players in the Indian setup, when you talk about this generation or the kind of player you won't see them in the next World Cup, this could have been an ideal moment to say a golden goodbye as far as the international cricket is concerned, because this is huge, this is big moment. And the kind of cricket that Indian team was playing, I think that there was a self-belief. And mind you, this 10 win out of 10 games, that belief was not only in that dressing room, that belief was everywhere. You know, even after scoring 240, whoever you were talking to, whoever our correspondents were talking, everybody was saying, we'll win it, we'll win it. This is what has happened in last month or so, that this team is given so much of hope and so much of positivity that, you know, if everything hope is... or hubris? I mean, like, you can play around with the words. It's मेरा एक सवाल बदरुद्दीन साहब से, कोच साहब वहाँ पे माइक है. अगले 2 साल में आप शमी के करियर को कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी तो मैं देखता हूँ कि अभी खेलेगा वो, ऐसा नहीं है. 2020 तो खेलेगा ही अभी, और टेस्ट मैच भी खेलेगा. वनडे का देखते हैं क्या होता है. अभी अब प्लान क्या है उसका, वो तो अच्छा. पता नहीं. आईपीएल तो खेलेंगे ही, और T20 तो खैर ये 2020 तो खेलेंगे. आईपीएल तो सभी खेलेंगे, आईपीएल कैसे नहीं खेलेंगे. और व्हाइट बॉल तो आईपीएल में भी है, और व्हाइट बॉल 2020 है. रेड बॉल, शायद टेस्ट, रेड बॉल तो खेलेगा. टेस्ट चैंपियनशिप में देखने को मिलेंगे. एक सोचने वाली बात यह है कि चलिए, ये तो विश्व कप खत्म हो गया, अब नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप T20 है. वहाँ पर ये जो जनरेशन उनमें कौन कौन खिलाड़ी हैं जो उसके लिए अवेलेबल होंगे, या फिर उसके लिए चयनकर्ता उनको चुनेंगे, क्योंकि ये विजय ने सही कहा कि चयन करता रहे तो जरा मैं तो रहा हूँ, थोड़ा वो थिंकिंग का हैट डाल के बताइए. इसीलिए ये लग रहा था कि जो रूथलेसनेस से भारतीय टीम खेल रही थी, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ये शानदार फेयरवेल होगा कई सारे खिलाड़ियों का. पर अब चूंकि वो हो नहीं पाया है, तो मुझे लगता है नए सिरे से चयनकर्ताओं को सोचना होगा कि आने वाले समय में अब आपको विश्व कप T20 की तैयारी करनी है. This is a journalistic question to you, Sabha. How many resignations are you expecting tomorrow?
I mean, Rika, you're not talking about EPL, English Premier League, where you have all those. It doesn't work like that here, Rika. इनफैक्ट इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा है विजय आपसे और सब आपसे, वो बड़ा सिंपल सा है। आईसीसी ने अपनी टीम अनाउंस की, वर्ल्ड 11 सो कॉल्ड, उसमें रोहित शर्मा को उसको कैप्टन अनाउंस किया। अब के बाद, आज के मैच के बाद अगर टीम अनाउंस होती तो रोहित शर्मा कैप्टन होते कि कमिंस कैप्टन होते उस टीम के? अगर आज जो मैच हुआ इसके बाद देखिए, वो जो टीम अनाउंस होती है वो हमेशा फाइनल से पहले होती है, क्योंकि वहां तक आप उस सफर को देख चुके होते हैं। और कप्तान का जहां तक जिक्र करें ना, वो एक मैच में वो उस पूरी धारणा को बदल नहीं सकता। आपका कप्तान, उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है दूसरे कप्तान से बेहतर हो सकती है, और उसकी टीम की परफॉर्मेंस दूसरे कप्तान की टीम की परफॉर्मेंस से बेहतर हो सकती है। लेकिन जिन तथ्यों पर आप उनको चुनते हैं या जो पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आप उनको चुनने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है उसमें वो कहीं आगे थे। सुमित, एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा सवाल है आपका कि रोहित शर्मा की कप्तानी सिर्फ मैदान पे ही नहीं रही है, उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन वो लेकर आए हैं इस विश्व कप में। जिस अप्रोच के साथ भारतीय टीम खेली है, ये बहुत बड़ा निखार देखने को मिला है। इसके पहले जो विश्व कप हो रहा था, T20 विश्व कप, हम लोग 2 बार हारे हैं वर्ल्ड कप T20, उसमें हमारी जो बल्लेबाजी हुई थी, हमारा जो अप्रोच था, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रहा है। ये जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसी वजह से रोहित शर्मा को चुना गया है कप्तान। नाम दिया गया। हाँ, कैप्टन काम, बहुत बड़ा परिवर्तन। ICC has chosen Rohit Sharma as the captain. Cricket Australia, in fact, had Virat Kohli. had their team, and Virat Kohli was the captain of that team. But do you also, Team of the guys, World Cup. That's typical Australia. That's typical Australia as well. But do you guys also feel that going into the next World Cup, which is the T20 World Cup, and you were mentioning about the approach, the fearless approach that India has adopted, do you think that is a positive that India is going to carry into that T20 World Cup because of the history that we have had in those tournaments? They have to, Osama. There is no second thought about that, because the modern cricket is changing rapidly, or you need to evolve with that, and like that's what Rohit Sharma has done. That is why we have reached the finals, and we had such a successful journey. So similarly, I think for T20 matches also, India has to bring in that change ASAP. I'll just add one more thing to it, just by saying, absolutely, that format demands that sort of a mentality and that sort of aggressiveness anyways. चलिए इसी नोट पे खत्म करते हैं, क्योंकि अब वक्त नहीं है। सलाम बालक ट्रस्ट, आप लोग सारे लोग आए, अंपायर साहब आपका भी, और आप सब, आप जितने भी मेहमान हैं, गुस्पा जी आप दोनों, तो अब हमारे उनको लॉगिन दे दिया जाए एक NDTV का। Well, Team India over the last 1.5 months has given us immense joy. Well, it is sad that they couldn't go on to win their 3rd World Cup title, but I must tell our viewers that it isn't a heartbreak. That's why India. गला खराब हो गया, लेकिन इंडिया Thank you very करता much for रहूंगा। watching. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।